morning, students. In my previous lecture, I have started the topic classification of crystalline solids. In that lecture, I have discussed about the first category of crystalline solid, that is molecular solids. They are of three types: non-polar molecular solids, polar molecular solids, and hydrogen bonded molecular solids. Now, today I am going to discuss the next category of crystalline solids, that is ionic solids. As the name already describes each and everything, ionic solids means the solids in which the constituent particles are ions. We know that ions are of two types, cations and anions. So when oppositely charged ions comes in the contact with each other and forms a bond, that we called ionic bond. And that type of solids which possess which have ionic bond are known as ionic solids. The main characteristics of such type of solids are, जो main characteristics हैं इन solids की वो क्या हैं? They are कि they have high melting and boiling point, but they do not conduct electricity in solid state, but they conduct electricity in molten state, because in solid state they do not have free constituent particles like ions, because they are made up of ions for the conduction of electricity from one part to another. These solids are very hard and brittle in nature. The ionic forces are very strong, and basically they are electrical insulators in solid state but electrical conductors in molten state. Examples आपके NaCl होगा, K2SO4, KCl, ZnS, KNO3. These are the examples of ionic solids. Second category means third category is metallic solids. Metallic means where metallic bond is present. First of all, we have to understand what is metallic bond. Beta, metallic bond means the bond which is formed in metals. We know that metals have a sea of free electrons, and the side from which they removed itself to be a part of that cloud of or that sea of electrons, that we termed as hole. The attractive forces between these negatively charged electrons and positively charged holes lead to a bond that we called metallic bond, and the solids which are formed by using these metallic bond are known as metallic solids. जितने भी metals होंगे बेटा उन सब में ये metallic solids example में आएगा और metallic bond होगा उनमें. इनकी characteristics हैं, they have high electrical and thermal conductivity होती है, इनका भी melting and boiling point high होगा, they are malleable and ductile, और when we burn them in flame, then they give a characteristic color to that flame. And the reason is that we know that metals have free electrons, so as soon as any electron get energy, it will definitely reaches to higher energy level, next energy level में पहुंच जाता है, and this change is temporary, and as soon as it comes back it releases the extra amount of energy attained in the form of heat and light, and as soon as it comes back it loses that energy in the form of heat and light, and that is why it gives a characteristic color to the flame. तो इसमें जितने भी examples होंगे आपके कॉपर है, आयरन है, and आपका सिल्वर है, गोल्ड है, whatever be the example, वो सब के सब आएंगे आपके metallic solids में. And the last type of classification of crystalline solid belongs to the category covalent or network solids. As its name signifies, covalent and network solid. What does it mean? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो solids जिनमें
नेटवर्क बनेगा, जिसमें लॉन्ग चेन्स बनेंगी। और ये प्रॉपर्टी हमारी पीरियोडिक टेबल के 14 ग्रुप के एलिमेंट्स में है, जहां पर लॉन्ग चेन्स बनती हैं बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, बेसिकली सिलिकॉन एंड कार्बन। तो यहाँ पर आपके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एलोट्रॉप्स हैं इनके, वो सब आएंगे एग्जाम्पल्स में। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स क्या होंगे कि यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर जॉइंट। नॉर्मली जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, डायरेक्शनल होता है नेचर में, ठीक है। दूसरा, ये जो सॉलिड्स हैं ये हार्ड होंगे, ब्रिटल होंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होंगे और आसानी से डिकम्पोज भी हो जाएंगे अपनी मेल्टिंग से पहले भी, ठीक है। बेसिकली इंसुलेटर्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल आएगा, दैट इज ग्रेफाइट, जो कि एक्सेप्शनल केस है, जो कि हार्ड नहीं है, एक तो सॉफ्ट है, दूसरा वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। अरेंजमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इस तरीके से, एटम्स का इस तरीके से कि उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है मॉलिक्यूल को, और जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। You can see here the arrangement of diamond. This is the arrangement of diamond and this is the arrangement of graphite. ये जो arrangement है diamond का, यहाँ पर एक single atom joins with other 4 atoms and that is why it is hardest substance in the world, और conduct नहीं करता है electricity because it has not any scope for the conduction of the electricity. But in case of graphite, a atom of carbon combines with only 3 carbons and 1 valency is free. And that is why graphite is a good conductor of electricity and it is soft, it is not brittle, and it is used in as a lubricant in machines के लिए as a lubricant हम इसका use करते हैं. So this is about the graphite and diamond. इसी के साथ सिल्वर कार्बाइड आएगा आपका, दैट इज सिलिकॉन में भी, क्योंकि नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं और वो कोवेलेंट बनाते हैं, बॉन्ड कोवेलेंट होता है, मतलब शेयरिंग से बॉन्ड होता है ना। दिस इज अ टेबुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड। ये टेबुलर डिस्क्रिप्शन है, यू लर्न इट एंड यू ड्रॉ दिस टेबल इन योर कॉपी ऑल्सो, एंड विच इज ईजी, विच हेल्प्स यू इन मेकिंग ईजी दिस टॉपिक। आसानी से आप लर्न कर सकते हैं कि किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, किसका लेस है, और अ नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स विल आस्क, a number of questions will ask on this topic, so please remember it carefully. Now, there are 4 questions in text question given in your book. First question is, classify the following solids in different categories based on the nature of intramolecular force operating in them. बेटा ये क्वेश्चन मैंने आज आपको अपनी ऑनलाइन क्लास में सॉल्व कराया था और आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, solid A is a very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? सीधी सी बात है, जो 4 हमने कैटेगराइज की हैं उनमें मेटालिक सॉलिड्स ही ऐसे हैं जो सॉलिड में भी और मोल्टन स्टेट दोनों में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट इन माई क्लास एंड इन माई दिस वीडियो ऑल्सो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मैलिएबल एंड डक्टाइल, एंड दे आर अगेन मेटालिक सॉलिड्स। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.7, सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर कहा गया है, सॉलिड में भी मोल्टन में भी, तो इट इज नॉट दैट मेटालिक सॉलिड, और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर वो होगा, एंड इट इज नेचुरली कोवेलेंट सॉलिड। इसका एग्जांपल कोवेलेंट आएगा, मैंने वो मिसरीड कर लिया था, इंसुलेटर की जगह कंडक्टर पढ़ लिया था, दैट इज व्हाई मैंने आपको मेटालिक बताया। द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1.7 इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। नाउ a new topic that we called crystal lattice is started here, जहां पर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, crystal lattice and unit cell। बेटा crystal lattice and unit cell को समझने के लिए हमें एक इमेजिनेशन ब्रेन में करना पड़ेगा। इमेजिनेशन ये है, हम जैसे पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, या यू कैन से ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट क्या है, ऐसे ही जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनका भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो हाउ दैट बिग क्रिस्टल इज फॉर्म, जैसे हमारी बॉडी में सेल्स का डिवीजन है,
और सेल्स के डिवीजन होने की वजह से हमारी पूरी बॉडी बन जाती है, हमारी बॉडी सेल से बनी है। ऐसे ही जो आपके क्रिस्टल्स हैं बेसिकली वो कैसे बने हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है दैट वी कॉल्ड यूनिट सेल, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। एंड व्हेन दिस यूनिट सेल रिपीट्स itself in all axes, in all three axes x, y, z, then a giant structure is formed which we called crystal lattice. तो इसको explain करते हैं हम कि what is a crystal lattice and what is a unit cell. So class, first of all we must understand the meaning of crystal lattice. A regular ordered arrangement of constituent particles in 3 dimensions is called crystal lattice. आपको ये एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़कर अभी बताई है। दिस इज अ होल अ क्रिस्टल लैटिस, और जो पोर्शन आपका रेड किया हुआ है दिस इज अ यूनिट सेल। अ यूनिट सेल इज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट यूनिट है जिससे कि क्रिस्टल लैटिस बनेगा। तो जब आप इस यूनिट सेल को तीनों डायमेंशंस एक्स वाई जेड तीनों में रिपीट करते जाते हैं, एड ऑन करते जाते हैं, देन ओनली आपका क्या बनता है, यूनिट सेल बनता है। दिस इज अबाउट द यूनिट सेल। सो यूनिट सेल जो है आपका वो कंस्टिट्यूएंट रिपीटिंग यूनिट है जिसके रिपीट करने से आपका क्रिस्टल लैटिस बनेगा। तो हाउ वी विल डिफाइन अ यूनिट सेल? वी कैन डिफाइन इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ स्पेस लैटिस which when repeated over and over again generates the complete crystal lattice. So this is about the unit cell. बेटा इन दोनों पॉइंट्स को तो हमें, ये दोनों पॉइंट्स तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे इस एक्सप्लेनेशन से कि क्रिस्टल लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है। जस्ट टू मोर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक आई वांट टू टेल यू व्हाट आर लैटिस पॉइंट्स एंड व्हाट आर लैटिस साइड्स। आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये डॉट्स हैं और इनको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ा गया है। दीज डॉट्स आर नथिंग बेटा, दीज आर एटम्स। ये एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं जिनसे वो पर्टिकुलरली क्रिस्टल लैटिस या यूनिट सेल बना है। ये जो एटम्स हैं इन एटम्स को हम समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो का पार्ट देखते हैं जो कि हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा कि बेसिकली हमारा लैटिस पॉइंट होता क्या है। So class, we will see this crystal lattice. So student, this is about a crystal. ये एक crystal lattice है पूरा का पूरा। आप देख सकते हैं कि हमारे एटम्स, हम आपको इस तरीके से इसको इमेजिन करना है। बेसिकली इसी तरीके का अरेंजमेंट होता है। हमें पता है हमारा जो क्रिस्टल लैटिस है उसमें जो एटम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, हमें ये पता है। एटम्स ही हैं कि इस तरीके से अरेंज है, तो हमें इसको सिर्फ एक इस तरीके से एज्यूम करना है कि ये जो एटम्स हैं इनके सेंटर से सेंटर का अरेंजमेंट हम देखेंगे, लिंक देखेंगे, और ये जो पूरा का पूरा एक एटम है इसको हम पॉइंट मानेंगे। इट इज आर पॉइंट स्ट्रक्चर। देखिए ना इस तरीके से, नाउ इट बिकम्स अ क्रिस्टल लैटिस। जो हम देखते हैं ये हमारे लैटिस पॉइंट्स हैं जहां पर हमारे एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, दैट आर नोन एज लैटिस पॉइंट्स, और उनको हम लैटिस साइट्स भी कहते हैं। तो दिस इज अबाउट द क्रिस्टल लैटिस। ये पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस है एंड दीज आर लैटिस पॉइंट्स। और इसकी जो एक रिपीटिंग यूनिट होगी जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। उसको हम कहते हैं यूनिट सेल। सो क्लास, हमें लैटिस पॉइंट्स भी समझ आ गए, हमें क्रिस्टल लैटिस भी समझ आ गया और हमें यूनिट सेल भी समझ आ गया। बेटा अब यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स हैं, क्योंकि यूनिट सेल जो है वो हर एक क्रिस्टल में एक जैसी नहीं हो सकती। क्या जितने भी लिविंग बींग्स यहाँ हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, क्या उन सबकी सेल्स एक जैसी हैं? ऐसा तो नहीं है, शेप साइज अलग है। इसी तरीके से यूनिट सेल जो अलग अलग हमारे कंपाउंड्स में प्रेजेंट हैं उनकी जो डायमेंशंस हैं दे आर डिफरेंट। अब दिस इज द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो उसके साइड्स जो तीन हमारे पॉइंट्स हैं, लेंथ्स कह लीजिए, एजेस कह लीजिए ये, और एक इनसे एसोसिएटेड एंगल्स। तो ए, बी एंड सी, दीज आर एज लेंथ्स। ये डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल गामा। इस तरीके से ये तीनों
डिफाइन करेंगी अलग अलग तरह के यूनिट सेल्स को, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट सेल. दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.